I said that wetland to store water, nature's, what I said that? Killer. And it is best known for water management. And then nature's kidney means if there is lots of toxicity in the water, yes or not? Several water pollution is there. So that pollution and toxicity it is able to remove from the water. Understood? Therefore it is known as nature's kidney. Therefore it is known as what? What is the job of kidney in our body? To remove the toxicity, yes or not? So that you can be able to say there is enough, I said that, and another it is a very good known for water management, means I said that flood, and during the flood absorb the water, and during the drought release the water on the top, so that it is required. In India there are several wetlands, but as per the Ramsar Convention there will be, I said that, as I have said. Clear? Now, another one it is, I am talking about next W4, what I said that, water rationing. Water rationing. Water rationing means I said limit the use of water. Yes or not? We have to give importance to the each drop of water. We have to give importance to each drop of water, limit the use of water. Limit the use of water. Clear? Yes? And then another W4 we can say like watershed management. Which one? Management. Watershed management. Shall I remove this? Shall I? Yes, sir. So watershed management, if suppose there is a river and better to say if it is, this is in Uttarakhand, and then here it is your Alaknanda and Bhagirathi met together become Ganga, and thereafter in Bihar it turned like this, and then it goes like this Hooghly, and then it goes in the name of Padma in Bangladesh. Here it is, its name is, and here it is Hooghly. जमुना तो ब्रह्मपुत्र का बताया था. This is clear? P for Pankaj sir or P for Padma? Clear? So Bangladesh में its name become Padma. Clear? Now here it is, there are several tributaries are there. Ram, Ganga, Gomti, Ghagra, Gandak, Budi Gandak, Kosi, Mahananda, different, I said that, tributaries of the rivers. Clear? And from here you can be able to say also, here it is which river? Yamuna. Thereafter we have, I said that Son. Clear? Son. Here it is, we have Falgu, Punpun, Mayurakshi, Ajay, Damodar, Silai. Different right bank tributaries are also there. But you know that every year this river has 500 million cubic meter of water it comes. How much water? Every year. और इसमें से 250 million cubic meter water become waste. Become what? And where it goes? It goes into Bay of बंगाल. क्या हमें इसे रोक लेना चाहिए? अरे रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? We should try to, because perhaps you are not knowing, India is a great scarcity of water in the present time. Agriculture needs 1100 million cubic meter of water, and we do not have this much. And in the next few years it will be 1500 million cubic meter the agriculture will demand
और इंडस्ट्री और अदर और हम लोग पीने के लिए तो पानी अलग की बात है. Should I store each and every drop? So shall I, if it is going on, तो हम लोग क्या करें? बड़े बड़े डैम्स is not the result. You know that big dams can create problem. Yes? क्या? कहाँ पे? किस चीज़ का फ्लड? कहाँ पे रोकेंगे हम? पानी कहाँ पे रोका जाता है? माउंटेन्स पे रोका जाता है. कभी भी प्लेन एरिया पे रोक नहीं सकते. प्लेन पे रोकेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? प्लेन एरिया में फैल जाएगा. वी कांट. द डैम्स, whether it is a big dams or whether it is a small dams, all are constructed in the, what I said that, mountains. लेकिन चेक डैम जिसकी 10 मीटर हाइट हो, the dams are generally it is in a height of what I said 150 meter, 130 meter, yes, even 200 meter height. And if I am talking about 8 meter, 10 meter, what is the meaning? 2 building height. तो वो तो हम लोग कर सकते हैं ना प्लेन में भी. We can do in the प्लेन. हमने देखा कि 8-10 गांव में 8-10 गांव को छोड़कर एक 8 to 10 विलेजेस के साथ एक छोटा छोटा डैम बना दे और वहां से क्या कर दे? पानी को भी जाने के लिए बना दे. तो इससे क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं, दिस इज नॉन एज चेक डैम. दिस इज नॉन एज व्हाट? In the mountainous region we cannot make big dams. We cannot make check dam because the water pressure is more. Yes or not? बहुत सारा पानी accumulate हो जाएगा और check dam टूट जाएगा. So what we have to do? I said that first point. I said ये समझ में आ चुका है. So there are the watershed management. I said that, listen me, there are the two types of watershed management. One, it is macro watershed management and another it is micro watershed management. This is direct. This is known as what? Direct. ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे. There is a direct. I said that macro watershed management. If I said that there is an, if I am making large dams, yes or not? If I am making barrage, like हम लोग barrage कभी पानी रोक लेते हैं. If I'll go to the there is in the, do we have a map of India? क्या हमारे पास map of India है? In the Rajasthan, in the Rajasthan Kota district, here Chambal river goes. Chambal, Yamuna is going on, and Yamuna tributary is which one? Chambal. And in the Chambal, that it is, when it is coming into the, when it is in the Mandsaur district, there is an, I said that Gandhi Sagar Dam. When it goes into Kota, so there is an, I said that there is an Rana Pratap Sagar Dam, Jawahar Sagar, and that is I said Jawahar Sagar Dam, and there is a Kota Barrage. कोटा में ही कोटा बैराज है. हमने क्या बोला? गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर. यस. चंबल के लोग गरजते हैं कि नहीं गरजते हैं? गरजते हैं ना. गांधी, राणा, जवाहर गरजते हैं कि नहीं चंबल के लोग? अरे डर लगता है? नहीं डर लगता. सो यहाँ पर कोटा बैराज है, विच आई सेड दैट कोटा बैराज. और यहीं पर कोटा डिस्ट्रिक्ट में ही तीनों डैम बताया मैंने, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज. लेकिन कोटा बैराज किस लिए बनाया गया? फॉर सम स्पेशल पर्पस. देयर इज रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, और कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो उसके लिए क्या चाहिए? वाटर. एनीवेयर, एनीवेयर. एचईपी के लिए तो चाहिए.
When you are using coal, coal से क्या करोगे? Water गर्म करोगे, water it will convert into steam, steam will put the pressure on the turbine, electricity produced. In the atomic power station also the heat energy generated, and then steam created, and steam has started making the turbine to move. Yes, water is required. So this quota barrage water goes to Rawat, Bhata. So there are barrage means it is, I said, not the dam, it is storing the water for some purpose. Yes or not? Should we have a barrage and it has what I said that? Some purpose, understood it? अरे clear है? Yes? ये दोनों समझ में आया या नहीं समझ में आया? And another one it is multi-purpose valley project. Yes or not? These dams are very large, very large. This is, I said that. यहाँ पर fishing भी होगी. What will be there? Fishing and also entertainment. So many things are happening. The purpose, multi-purpose, electricity, it is the purpose of dam producing electricity is also there. And several other purposes are there. It is clear. So this is considered as an ऐसा बनाऊंगा मैं तो there will be, I said that it is in a large level पर पानी को रोक रहा हूं मैं. Can I say it is in a macro watershed management? And it is a directly we are able to see. This is the direct one. Next one, micro watershed management. If we are doing micro watershed management, like I said, if the slope area is like this, यदि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो whole महाराष्ट्र आज बताया जाएगा कि महाराष्ट्र, दक्कन पठार, what is the condition, drought condition of India. They are getting the rainfall only 50 to 60 centimeter. And थोड़ा सा दूर चले जाओगे तो they are getting 30-40 centimeter rainfall. और 30 से कम हो जाएगा तो directly they are converting into desert. What does it mean? I said, हमने क्या कहा कि in the there is some slopy region, then what we should do? Try to make small dams or small what I said that checkers. Small checkers. Yes or not? लोग देखे होंगे ना गांव में क्या करते रहते हैं, कुछ ऐसा बना दिया, पानी बरसा वहां पे रुक गया. Yes, water has been accumulated. Yes or not? अरे yes. So this is, I said that small checkers. Another one, check dam, जो अभी मैंने बताया था, check dam सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है. check dam. check dam का मतलब है yes 8 to 10 meter high dams. छोटे छोटे rivers, streams में भी हम बना सकते हैं. And we can make in thousands. Yes or not? Yes or not? So there will be a formation of what? Check dams. Can we make अच्छा ये बताओ, all of you are from the village area, must be एक बार village गए होगे, नहीं तो village area तो पता ही होगा. यदि आप बचपन में जाकर देखो उस विलेज के आसपास एक पॉन्ड हुआ करता था, आज भी एक ही पॉन्ड है, वही पॉन्ड है. इज देयर एनी न्यू क्रिएशन? नो. क्या हमें क्रिएट करना चाहिए और पॉन्ड? इफ विल क्रिएट मोर पॉन्ड देन द वाटर विल बी स्टोर्ड. यस और नॉट? मोर वाटर इज स्टोर्ड. नहीं तो वो पानी ऐसे गिरता है खेतों से होते हुए, फाइनली इट गोज टू द नियर बाई, आई सेड दैट कैनाल और मे बी इन द रिवर्स, एंड रिवर से होते हुए फाइनली गोज इन टू द बिग रिवर्स टू द व्हाट? ओशियन. बेकार हो गया. यस. सो हमें क्या बनाना चाहिए? टेल मी, व्हाट शुड वी क्रिएट? ponds. Yes or not? These are what? Direct method. Ponds we should create. बोलो तो सही. We should create what? Ponds. And if I am talking about this one I am writing here, I said, can I make, I said that trench around trees. आप एक ट्री, when we have what I said that one tree is there, और यहां पर आप क्या बना दो? चारों तरफ गड्ढा. Yes or not? Trench around
देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर. हमें अलग से पेड़ नहीं, और जितनी भी बारिश होगी इट विल गो एंड रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर आल्सो. यस. और जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज. सो व्हाट आई सेड दैट ट्रेंच अराउंड ट्रीज. अरे एक मूवी आपने देखा है ना, सो आई सेड दैट, अरे खिलजी वाला कौन मूवी है, दिमाग, पद्मावत, देखा है ना? हाँ, तो उसमें एक वेल दिखाया जाता है जिसमें वो लोग क्या करने जा रहे थे, क्या ना कहते हैं, जौहर. ऑल द वुमन आर गोइंग फॉर फ्रॉम द दीज आर मेवाड़ रीजन. मेवाड़ दिखता है ना आप लोगों को, मेवाड़ और मारवाड़, तो मेवाड़ी ये सारे हैं. ये सब जो कंसेप्ट है ना, राजस्थान गुजरात रीजन में ऐसे आपको बहुत सारे कुएं बनाए जाते हैं एंड दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड वेल्स आर देयर. यस, सो दैट इन द टाइम ऑफ ड्राई कंडीशन, आज आप लोग इतनी चीज़ें सीखेंगे उसका हद नहीं है. आई सेड ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सो मेनी थिंग्स आई विल डिस्कस. आपको ये है, मैं तो याद और समझाते चला जाऊंगा, आपको बांधने की ज़रूरत है. रेडी हैं? इतना सारा चीज़ लेने के लिए रेडी हैं? या थोड़ा सा बता के आपको खुश कर दो, यस चलो हो गया. सो आई सेड पॉन्ड समझ में आ गया. देयर इज एन ट्रेंचेज अराउंड द ट्रीज एंड वी शुड क्रिएट व्हाट आई सेड दैट वेल्स. यस यस, वो नीचे के पानी के लिए वेल नहीं, वेल स्टोरेज के लिए वेल्स. यस, these are considered as, yes tell me, macro and micro. तो ये डायरेक्ट स्टोरेज ऑफ वाटर, यस और नॉट. अच्छा, ये वाटर कहाँ गिर रहा है? यस टेल मी. ये इस नदियों के आसपास ही गिर रहा है, यस और नॉट. दिस इज द मेन गंगा रिवर एंड दिस इज, आई सेड दैट देयर ट्रिब्यूटरीज एंड दिस इज होल नॉन एज व्हाट आई सेड द रिवर सिस्टम. और इसी के आसपास वाटर गिर रहा है. फाइनली इट विल गो इनटू दिस स्मॉल रिवर्स, यस और नॉट, देन फाइनली गो टू द मेन रिवर. मैं उससे जाने से पहले ही यहाँ पर ही आसपास या तो डैम से यहाँ रोक लिया और माइक्रो वाटरशेड मैनेजमेंट से पहले ही रोक लिया. यस यस और नॉट. इंस्टेड ऑफ गोइंग गेटिंग इनटू द रिवर वी स्टॉप्ड हियर. क्लियर? सो दिस इज नोन एज अ डायरेक्ट स्टोरेज ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटरशेड एरिया. जिसको क्या बोलेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? और वाटरशेड एरिया किसको कहा जाएगा? इट इज द रिवर बेसिन इटसेल्फ, मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. क्लियर है? सो वी हैव सीन, अंडरस्टैंड देन व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी इनडायरेक्ट. और इसके बारे में मैंने इनडायरेक्ट के बारे में पहले भी बात कर लिया. सर रिमूव नाउ. सो मैक्रो क्लियर हो गया, माइक्रो इज क्लियर. क्या आप वाटरशेड मैनेजमेंट से डरते थे कि नहीं डरते थे? ये मुझे बताओ. डरते थे ना? पता नहीं कौन से खेत की मूली है, वाटरशेड मैनेजमेंट लोग बोल देते हैं फटाफट. गेटिंग माई पॉइंट? सो अनदर पॉइंट, इफ आई एम सेइंग इनडायरेक्ट, and indirect means if I am talking about forest, what it is? Forest, and that is the two types of forest. It is, you know that, बता चुका हूँ. कौन कौन सा? Afforestation and reforestation. Afforestation and reforestation. Afforestation का मतलब होता है, yes, planting trees along the new land. जहां पे पहले कभी भी फॉरेस्ट नहीं था, उस एरिया में फॉरेस्ट करने को क्या कहेंगे हम? टेल मी. न्यू लैंड, फॉरेस्टेशन इन, एंड रिफॉरेस्टेशन मीन्स डिफॉरेस्टेड लैंड. जहां पे फॉरेस्ट था दैट हैज बीन कट. सो एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, ये क्या करेगा? यू नो दैट द 10 लीटर वाटर इज फॉलिंग, देन इट विल फॉल ऑन द लीव्स. यदि एक तरफ पेड़ है और एक तरफ नहीं है तो वाटर विल फॉल डाउन डायरेक्टली ऑन टू द सॉइल.
एंड देन सॉयल हैज अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर. लेकिन बहुत तेजी से पानी आपके मुंह में इतना एक गिलास पानी डालेंगे तो क्या होगा, सारा पानी बाहर. बट आप स्लोली स्लोली यू कैन ड्रिंक. यस और नॉट. सॉयल हैज ऑल्सो same way capacity, infiltration capacity. Yes, if it has infiltration capacity in certain amount, if it has an infiltration capacity in certain amount, तो हम डायरेक्ट यदि रेनफॉल गिरेगा, फॉरेस्ट नहीं है, तो it will fall over the land and it will move toward the river. Yes, and it will not be absorbed. But if there is a tree, then fall on the leaves, then the falling, then धीरे धीरे वो branch पे जाएगा, then trunks, then the roots, then the, I said, absorbed by soil there. Yes or not? So out of 10 liter, 9 liter, 8 liter, 80 to 90% absorb हो जाता है पानी. Getting my point? If the trees are there, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल के लिए. एंड आवर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, जब भी हमें जरूरत होगी, ड्रॉट होगा, तो नीचे का पानी पी सकते हैं. इफ द अंडरग्राउंड वाटर इज वेरी बिलो, इट विल बी क्रिएटिंग एन अ प्रॉब्लम. अभी कुछ दिन पहले आपने महाराष्ट्र में देखा था, इन द रीजन ऑफ विदर्भा, सुना था ना आप लोगों ने. व्हाट हैपेंड? Underground water is very below and not rainfall over there, so it is a man-made drought. आज ये भी बात करूँगा मैं, not in detail, but I said that to some extent. So here it is, I said that afforestation and reforestation is an indirect method of storing the water from store. यहाँ पे trees लगाया जाए लाखों करोड़ों हेक्टेयर में, yes or not? लाखों हेक्टेयर्स में, so that they can absorb the water indirectly. समझ में आ गया? So this is an indirect watershed management. Indirect watershed management. So definition अब क्या होगा आप बताएं? What is the watershed management? Direct और इनडायरेक्ट, पहले सुन ले. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टोरेज ऑफ वाटर फ्रॉम द इन द वाटर शेड एरिया ऑफ द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. यस और नॉट? व्हाट इज द डेफिनेशन? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टोरेज ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर शेड एरिया ऑफ रिवर एंड इट्स मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. सो लिख लेंगे, direct and indirect storage of water from the watershed area of main river and its tributaries. समझ में आ चुका है? So shall I remove? चलो इसी बहाने आप लोगों को थोड़ा सा क्या समझा दिया मैंने. So what the point I have said that yes, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी जो है साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आ जाएगी. वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर सिक्योरिटी को बचाने के लिए एसीपी साहब से छीनकर किसको दे दिया गया? सीनियर सीपी को दे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इट इज कमिंग फॉर ए फॉर, दिस इज क्लियर ना? यहां पे वेटलैंड, water rationing, and there is a watershed management. Clear? A for alternative land use model. Alternative land use model.
दिस इज क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है लैंड यूज मॉडल का मतलब है? A for alternative land use. If you'll go back some thousands years, everywhere forest in the world, in India, yes or not? और जस्ट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जस्ट 200 years back if you'll go, there is in the world 8,000 million hectare of the land has forest, and at present only 2,000 million hectare of the land forest. How much deforestation? 75% forest has been removed. So can I say that land use has been changed? पहले लैंड पे क्या था? फॉरेस्ट. सिंपल. यदि आप लोग डरा ना करें लैंड यूज, ये व्हाट इज द वर्ड, बहुत टफ होगा. यही है आप लोग का, यही हाल है. मैं जानता हूं कि 99% स्टूडेंट दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ऐसे वर्ड आ जाएंगे तो दिमाग से गायब. अल्टरनेटिव लैंड यूज. हम लोगों ने ये जानते हैं कि आज के इन्वायरमेंट को बनाने के लिए देयर शुड बी 33% फॉरेस्ट. एक बात ध्यान रखें, हमारे पास 40% जो है ना कवर होना चाहिए. 60% पे हम जो करें, रहें, खाएं, पिए, वॉट एवर वी कैन डू. बट वॉट हैपेंड, एग्रीकल्चर सब कुछ इसी पे करेंगे 60% पे, लेकिन आज के डेट में बहुत कम है यहां पर. तो 40% में से 33% शुड बी फॉरेस्ट एंड 7% शुड बी ग्रासलैंड. कितना होना चाहिए? तो जितना फॉरेस्ट होगा उतना ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ये तो आपको पता है ना. इससे कभी भी ड्रॉट का कंडीशन नहीं आएगा. इतने में ही आपको ज़्यादा समझदार होंगे. ड्रॉट का कंडीशन नहीं आएगा, पानी अच्छे से अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा. यस. और क्लाइमेट भी अच्छा बना रहेगा. पेड़ ज़्यादा तो क्लाइमेट इज बेटर. यस और नॉट? बट हाउ मच फॉरेस्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द गवर्नमेंट? 20%. कुछ लोग कहते हैं 22%, बट फॉरेस्ट सर्वे 22% कहता है, लेकिन वो गलत है. दिखा रहा है वो 22 से 23 भी कर दिया है. ठीक है. सो हाउ मच फॉरेस्ट वी हैव? यस. कितना कम है? 13% नहीं, लगभग आप सोच सकते हो कि 33% मीन्स आई सेड दैट 13% और है कितना, और होना कितना चाहिए? कितने का लॉस दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस. विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट फॉरेस्ट देयर इज a 65% लेस फॉरेस्ट. यस. 13/20. चलो परसेंट नहीं आता, कोई मतलब नहीं. सीसेट क्लियर तो करना ही नहीं है हमें, है ना. सीसेट नहीं क्लियर करेंगे तो एग्जाम भी. सो आई सेड दैट 33% समझ में आ रहा है. तो हमें अल्टरनेटिव लैंड यूज मॉडल में क्या करना होगा? अगेन वही सेम चीज, इंक्रीज फॉरेस्ट इन व्हाट? ध्यान से, सोशल फॉरेस्ट्री. क्या कहेंगे हम? अनदर वन विल सी एग्रो फॉरेस्ट्री. क्या बोलेंगे हम? Which one I said that? Social forestry, agroforestry means society. Who will do this forest? Society. By the people, of the people and for the people. ये फॉरेस्ट कौन लगाएगा? उसका यूज कौन करेगा? और वो किसका होगा? Getting my point? Yes. So ये फॉरेस्ट कहां कहां लगेगा? Along the roads, along the rivers, along the canals, in the, I said that urban parks, urban community area, urban park, and then I said that panchayat community. Yes or not? अरे ट्रीज कहाँ कहाँ लगाएंगे?
along the rivers, along the roads, along the, I said that canals, and then you can say along the any that railway के along देखते हैं लगा हुआ, ये सब क्या है? What is the meaning of this? Social forestry. समझ में आ चुका है? So what we should do? लैंड यूज मॉडल में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, लैंड यूज को बेटर बनाएंगे बाय डूइंग द विच काइंड ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, एंड एग्रीकल्चर के अराउंड भी फॉरेस्ट लगाएं. क्या करें हम? सो अलोंग एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्लस और बाद में क्लास से पूछना चाहते हो सर क्या क्या कैसे कैसे फ़ायदे हैं, दैट यू कैन. अभी तो फिलहाल हम लोग पानी के लिए बता रहे हैं और ड्रॉट कर रहे हैं. देयरफॉर आई एम सेइंग दैट कि व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स. यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. इट कैन बी स्टॉप. यस, क्लियर है? हमें क्या करना चाहिए? अवेयर करना चाहिए. अवेयर द फार्मर्स, अवेयर द विलेज पीपल, aware the village people for, I said, yes, किसके लिए? making ponds, yes, artificial ponds, yes, making artificial ponds, artificial wells, लैंड यूज मॉडल, अल्टरनेटिव लैंड यूज मॉडल. समझ में आ गया? लास्ट लाइन इसके लिए बोलूंगा, अल्टरनेटिव लैंड यूज मॉडल फॉर वाटर सस्टेनेबिलिटी. क्या लिखेंगे हम? अल्टरनेटिव लैंड यूज मॉडल फॉर वाटर सस्टेनेबिलिटी. सलाई सलाई कितने लैंड पे एग्रीकल्चर और लोग रहने चाहिए इस टेल में? 60% पे. और कितना परसेंट फॉरेस्ट और ग्रास लैंड होना चाहिए? 40%. कितने सालों की तैयारी में ये पता चला? चलो. So shall I remove this alternative land use model for water sustainability? समझ में आ गया? ए लेटर क्लियर है? हमें कैसा कैटल ग्रो करना चाहिए? टेल मी, दोज हु वांट्स मोर वाटर और दोज हु वांट्स लेस वाटर. यस और नॉट? कुछ ऐसे कैटल जो ड्राई एरिया है जहां पे ड्रॉट जनरली आता है, वहां पर क्या ग्रो करना चाहिए? विच काइंड ऑफ वाटर, विच काइंड ऑफ एनिमल? दोज हु आर ड्रॉट रेसिस्टेंट. तो हमने क्या बोलना है अगला? सी लेटर फॉर कैटल मैनेजमेंट. क्या है? कैटल मैनेजमेंट. सी लेटर फॉर क्लियर? सी लेटर फॉर गॉट इट? और इसमें मुझे कुछ कहना चाहिए या ड्रॉट रेसिस्टेंट एनिमल बोलें या मिल्च एनिमल्स? हमारे कैसे एनिमल्स होने चाहिए? एक तो हमारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिससे हमें क्या मिलता है? दूध. और एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? सिंपली दे आर फॉर द समवर वर्क फोर्स, इन्वॉल्व इन वर्क फोर्स. तो हम लोग को क्या बोलना चाहिए इस टेल में? ड्रॉट रेसिस्टेंट